आशीष पांडे. ओके, पिछले लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? सेडिमेंट्री कंप्लीट हुआ था ना? तो तुम लोग ले लो. Then should I write here? See, what you should do now. I will make your mind map. You start to draw a mind map, so that you will have the both option, notes also and mind map also. Okay. Yeah. उसमें नहीं रहेगा क्योंकि मैंने उसमें बहुत डीप में गया, क्योंकि जो यूपीएससी या कोई भी पीएससी होता है वो ये सब में रॉक्स में और सॉइल में ना बहुत डीप में जाता है. और वो यूपीएससी तुमसे ये नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज द इग्नियस रॉक. ही विल डायरेक्टली गिव द एग्जांपल. क्या होगा? बंद हो गया, कनेक्टिंग हो रहा है. He will give you your example. For example, define which type of rock is this. See that. और मार्बल which type of rock is this. और पूछा गया है, कितने बार पूछा गया, ये उन लोग नहीं पूछने. हाँ, एक बार सिर्फ पूछा था कि इसमें फॉसिल होता है या नहीं होता, बस. बाकी सब एग्जांपल पे पूछेंगे. इसके लिए मैंने इसमें जितना होता है उतना मैंने एग्जांपल से मैंने यूज किया. Okay, fine. Okay. Now let me start with the metamorphic rocks. Okay. Metamorphic rock. Okay. What is the metamorphic? Simply, I've told you, no, that change in the form of the rock is the metamorphic rock. Okay. Change in the form of the rock is the metamorphic rock. What is the igneous rock? The lava, the magma which come from the inside of the earth and they dry up on the surface of the earth and it fully spread. Okay, it is fully spread. When it dry up, then it is known as the igneous rock. Okay, I have told you that two type of rock. Is that also? First one is plutonic and second one is high abyssal. Okay, where is the plutonic rock? 3 to 6 kilometer. Okay, and where is the high abyssal rock? In the range of the 2 kilometer. Okay, means in short I can say that it is the intrusive rock. Okay, it is the intrusive igneous rock. And the which अगर magma अगर बाहर आके surface पे सूख जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा वहां पर? एक्सट्रूसिव रॉक. ठीक है, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर और इंट्रूसिव मतलब अंदर. ठीक है. सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री का मतलब ये कि जो भी इग्नियस रॉक है डिस्टर्ब हो जाएगा. Ashish Pandey, can you see this? What, sir? Can you see this board?
clearly? Sir, your voice is not coming properly. Not coming. How? Now can you hear me? Yes, sir. Okay, okay. Now you can see the blackboard clearly. Yes, sir. Okay, okay. Let us start. ठीक है. सेडिमेंट्री किसको बोलते हैं? अगर इग्नियस रॉक के ऊपर वेदरिंग, ठीक है, either here will be the weathering or denudation, ठीक है, deposition or weathering of the igneous rock, it will create a sediment, ठीक है, and the process of making the rock from the sediment is known as the lithification. Okay, that time I told you two type of lithification or process. Which one was there? One was cementric, or second one was sanitic and asanitic. No, no, no. You are talking about the texture. You are talking about the texture of igneous rock. I am talking about the lithification. Lithification का मैंने बताया था ना, दो प्रोसेस. क्या है वो? Symmetric and no. It is not asymmetric. Compaction and symmetric ना. Compaction and symmetric. What is the meaning of compaction? Due to the pressure, ठीक है, अंदर से हीट भी आ रहा है, ऊपर से उसको दबाव भी आ रहा है, ठीक है. अगर सेडिमेंट्री है, ठीक है, अगर किसी भी सेडिमेंट का अगर चूरा है, ठीक है, उसका सेडिमेंट है, तो ऊपर से उसके ऊपर और दबाव आ जाएगा, ठीक है. अगर ऊपर से अगर और सेडिमेंट आते गए या कुछ किसी का मतलब प्रेशर आ गया ऊपर, ठीक है, तो वो एक के ऊपर एक वो दबता जाएगा और नीचे से वो हीट आ रहा है, वो अलग आ रहा है, ठीक है. तो जो वहां पर चूरा था, या मैं बोलूं कि जो वहां पर सेडिमेंट्स थे, अब वो एक साथ जुड़ जाएंगे और वो बन जाएंगे, वहां पर क्या बन जाएंगे? रॉक बन जाएंगे, ठीक है. और मैंने बोला था सीमेंट्रेशन, ठीक है. सीमेंट्रेशन मतलब कि अगर यहाँ पर छोटे छोटे सेडिमेंट है, ठीक है, लूज पार्टिकल, ठीक है, और अगर इसमें ऐसे मतलब गैप है, मतलब पानी जाने लायक इसमें गैप है, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना देता था. यहाँ पर ऐसे सेडिमेंट है और इसमें मतलब पानी जाने के लिए यहाँ पर गैप है, ठीक है. तो अगर इसमें पानी जाता है, फिर भी यहाँ से नीचे से हीट है अभी, ठीक है, हीट है, इसके ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन यहाँ पर पानी भी जा रहा है, ठीक है. समय बाद जब तक उसमें पानी जाएगा और तब तक उस पर हीट पड़ता रहेगा, तब वो क्या करेगा, ये सब जितने भी आपको गैप दिखाई दे रहे उसको वो जुड़ देगा, ठीक है. फिर बाद में ये सब आपको गैप नहीं दिखाई देंगे, वो सीधा एक दूसरे से वो जुड़ जाएंगे. और जब वो जुड़ जाएंगे तो फिर से जो मैंने कॉम्पैक्शन में आपको जो पढ़ाया था कि प्रेशर ऊपर से जा रहा है और नीचे से हीट भी आ रहा है, तब जाके ये फिर से बन जाएंगे रॉक, ठीक है. The process of creating the sediment into the rock is known as the lithification, ठीक है. अब बात करते हैं कौन से, वो लीचिंग था जहां पर मिनरल्स डिसॉल्व होके जमीन के अंदर जा रहे. इसके लिए मैं उस समय में बोल रहा था कि कंफ्यूज मत होना. वो लीचिंग था जहां पर मिनरल्स वाटर में डिसॉल्व होके जमीन के अंदर जा रहे थे, और ये लिथिफिकेशन है. लिथिफिकेशन, लिथ मतलब क्या? लिथ मतलब पत्थर होता है, लिथिफिकेशन. और वो लीचिंग है. लीचिंग मतलब कोई कुछ चीज अंदर जा रहा है. तो अगर वो पानी ऊपर के अगर सरफेस के मिनरल्स को अगर वो खुल के अगर वो अंदर लेके जाएगा तो उसको बोलते, क्या बोलते उसको? लीचिंग. और इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रॉक सेडिमेंट्स टू द सेडिमेंट्री रॉक इज नोन एज द लिथिफिकेशन. अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की. Metamorphic means change in the form, ठीक है. मेटामॉर्फिक मतलब
चेंज इन द फॉर्म, ठीक है, ये रॉक है तो इसमें चेंज कैसे आएगा? अगर आप बोलोगे कि ठीक है सर, यहाँ से यहाँ पर अगर वो इसके ऊपर से पानी पानी बहना चालू हो जाएगा तब जाके चेंज आएगा, हवा बहना चालू हो जाएगा तब जाके चेंज आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तो उसका तो वेदरिंग हो गया, ये तो उसका तो ये तो इसका तो इरोजन हो गया। तो यहाँ पर चेंज कैसे आ रहा है? चेंज कैसे आ रहा है? अगर बोलता हूँ जाके कंप्लेन कर दो, क्योंकि एक बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। सर वीडियो बार बार बीच में पॉज हो जा रहा है। Shruti madam, wait, wait. Online student, wait. Please wait. Sir, again you are not audible. Wait, wait. Please wait. Wait. चलो हो गया, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ यू ऑल कैन हियर माय वॉइस। नीलेश, Sir, Yes, sir. Clear, sir. okay, dear. Okay, what is the metamorphic? Metamorphic means the change in the form. Okay, now here I told the metamorphic rock. Metamorphic rock means change in the form of rock. Right now, so how the change can take place? Okay, if I will say that the water is flowing from the rock on the rocks, or the wind is changing in the form of rock, okay, then it is not a change, it is the erosion.
Okay, it is the erosion. And if I will say that okay, there is the change because of the loss of chemicals, okay, due to the chemical destruction, then it is the weathering. Weathering, na? Then it is weathering. Then what? Then what I mean? What is the, how there can be the change in the form of rock? ठीक है, अगर 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 उसपे से अगर पानी गया या उसपे से हवा गया तो या तो वो डिपोजिशन करेगा या तो वो वेदरिंग करेगा, ठीक है। अगर केमिकल के वजह से यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो उसको बोल सकते हैं वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग हो रहा है यहाँ पर, तो आखिर ये फॉर्म चेंज होगा कैसे, ठीक है। या तो ये खुद जाके, मतलब जब वो प्लेट का जब सब्जक्शन होगा, ठीक है, तब ये जाके लावा है अंदर का, अगर ये कैसे भी करके अगर ये लावे के कांटेक्ट में आया, ठीक है, अगर ये लावा के कांटेक्ट में आया, ठीक है, लावा में तो रहते हैं वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स, ठीक है, अगर ये लावा के कांटेक्ट में आया तब जाके इसका चेंजिंग फॉर्म होगा, ठीक है। या तो वहां की जो जमीन है वो सब्जेक्ट हो जाए, वो अंदर वो धस जाए, ठीक है, और फिर बाद में वहां की जो रॉक है, चाहे वो सेडिमेंट्री हो या इग्नियस, ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर वो लावे के कांटेक्ट में आया तो देन इट विल चेंज द फॉर्म, ठीक है। या तो जब वोल्केनो वहां से इरप्ट होगा और जब लावा खुद चल के इन लोग से कांटेक्ट करेगा, ठीक है, जब इन लोग के कांटेक्ट में आएगा देन इट विल बी द चेंज इन द फॉर्म, ठीक है। मतलब कुछ भी करके इन लोग को लावे के साथ इनको जुड़ना ही हो, ओके, देन इट विल बी द चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉक। सेडिमेंट्री अगर लावा के कांटेक्ट में आया, अगर इग्नियस रॉक भी अगर लावा के कांटेक्ट में आया देन इट विल बी द मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। व्हाट इज द मेटामॉर्फिक? इट इज द चेंज इन द फॉर्म, ठीक है, उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ भी चीज अगर इग्नियस है, ठीक है, अगर वो लावे के कांटेक्ट में आया देन इट विल अगेन बिकम अ मेटामॉर्फिक। और अगर वो कुछ ज्यादा ही लावे के कांटेक्ट में आ गया और वो लावे के कांटेक्ट में आ गया, अगर वो अंदर जा रहा है, अगर वो गर्मी से पिघल गया तो वही इग्नियस रॉक फिर से बन जाएगा लावा और फिर से वो इरप्ट करेगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो अगर यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर अगर एक चद्दर चढ़ता है मैग्मा का, ठीक है, मतलब ऐसा ही सिर्फ वो स्प्रेड हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तब जाके ये चेंज होगा मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो एक बार समझ लो, मेटामॉर्फिक इज द प्रोसेस बाय विच द recrystallization and the reorganization of mineral occurs within the rock, ठीक है। जो भी मिनरल्स रहेंगे उसके अंदर या जो उसका जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट होगा। ऑफ कोर्स जब लावा के जब वो कांटेक्ट में आएगा तो लावा में तो पहले से ही बहुत ज्यादा मिनरल्स है, ठीक है। तो जब ये लावे के कांटेक्ट में आएगा और जब लावा जब इसके ऊपर अपना एक चद्दर बना देगा तो जब आप इसको देखोगे तब इसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स आपको मिलेगा ना, ठीक है। अगर रॉक है, अगर इसमें आयरन नहीं है, ठीक है, अगर अंदर से लावा आया जिसमें आयरन है, जिसमें मैग्नीशियम है, और इसके ऊपर इसमें एक चद्दर सा या इसके ऊपर वो फैल गया, ठीक है, तो अब जब आप वो रॉक को आप देखोगे तो उसमें अब आपको आयरन भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, ठीक है। then it is the change in the form of rock, it is not the original rock, it is the change in the form of rock, ठीक है। when the rock are forced down to the lower level by the tectonic process and when the molten magma rises through the crust to come up to the contact with the crystal rock, then it occurs the metamorphic rock, ठीक है। जब यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट होता है, ठीक है, मैंने बताया था टेक्टोनिक प्लेट मतलब क्या, एक दूसरे से जब वो दूर जाएगा या एक दूसरे के वो जब पास आएगा तब जाके जब वो हलचल होगा, ठीक है। अभी आप लोगों को मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट को मतलब इसका कुछ पता नहीं होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में, लेकिन मैंने आप लोगों को मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो जब वो प्लेट जब एक दूसरे से जब वो दूर जाएगा, ठीक है, तब जाके अंदर से हलचल होगा, तब भी जाके अंदर से लावा आएगा बाहर, ठीक है, और तब वो जाके इन लोग के साथ वो कांटेक्ट में आएगा। सेकेंड प्रोसेस होता है जब वोल्केनो इरप्ट होगा, ठीक है, जब वोल्केनो इरप्ट हुआ और तब जब वोल्केनो ये सब रॉक के ऊपर अगर वो फैलते जाते हैं तब जाके वो बन जाएगा
मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो सिंपली याद रखना व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, इट इज नथिंग बट द चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉक, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक, ओके, और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मिनरल और रॉक, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछेंगे, एग्जाम में आपको कोई भी नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, ये सबको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। वहां पर आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ग्रेनाइट का अगर चेंज फॉर्म हुआ तो क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर बेसल्ट का फॉर्म चेंज हुआ तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, मतलब जितने हो सकते हैं लगभग मैंने नोट डाउन किया, आप लोग भी एक बार उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। विच टाइप ऑफ रॉक इज द ग्रेनाइट? इग्नियस ना, पक्का सही बोल रहे हो? मुझे तो लगता है कि वो गलत बोल रहे हो, सही। एंड बेसल्ट इग्नियस, मार्बल मेटामॉर्फिक, ठीक है। नाउ सी ग्रेनाइट इज igneous rock. Sir, voice is very breaking. So no, which one of the following sentences Breaking? is after that? Voice is breaking. How my voice is breaking? Yes, yeah, which sentence is after that? See, check करो। अच्छे से। Sir, you're not audible again. अभी तक कुछ चल ही रहा था। ट्राई करते देखते कैसा है। Now you can hear me. Sir, the sound is going to be echo. साउंड की सीखो। Echo आ रहा है। अभी आ रहा है? नीलेश आ रहा है अब अच्छे से? हाँ मुझे क्लियर आ रहा है सर। ओके Now ठीक it's है, ओके ओके ठीक है। क्या था मार्कर? ठीक है। तो ग्रेनाइट इज द igneous rock. When it will change its form, then it will become a gneiss. GNEISS, ठीक है, gneiss, ठीक है। It is the metamorphic rock, ठीक है। And when the basalt, where we can find the basalt? Oceanic na, oceanic crust, and on continent And decide, granite. basalt is the
igneous rock, of course basalt is the igneous rock. अगर इसका फॉर्म चेंज होएगा देन अगर होगा तो amphibites, ठीक है, amphibites, This becomes metamorphic. yeah, this all comes under the metamorphic. ठीक है, इस साइड का मतलब जितने भी रॉक्स आएंगे ना दे ऑल आर अ मेटामॉर्फिक, ठीक है, क्योंकि पहले जितने भी थे उनके फॉर्म चेंज हो गए और फॉर्म चेंज हो जाने के बाद में उन लोग का रॉक का ये सब ना पड़ा है, ठीक है। Gabbro. Gabbro is also the same. Yeah. Gabbro, so granite का वो second form, ठीक है। Gabbro is also the igneous rock, and when you will find here a change in the form, then you can see here serpentine. Serpentine. When there is the change in the form, then you will see here the serpentine. Limestone. What is the limestone? Siddesh. Which type of rock? Of course, sedimentary. ठीक है? Online students, are you getting my point? Yes, sir. 100%. So diamond will be what? See, in diamond, there is a debate. Okay, some are saying that diamond is not a rock; it is type of the mineral. Okay, and some are saying that it is the form of the metamorphic. Wait, I will show you. I searched even today while coming. See, many are saying that diamond is not a rock; it is the mineral, and many are saying that no. Diamond, it is the sedimentary rock. Let's see. I take here the geology.com. Okay. So here you can see how does diamond form there. And here you can see those diamonds are now contained in the sedimentary placer deposit of the stream and coastal line. So it's a sedimentary type. Yeah. Now according to the this post, now it is called as the sedimentary. Sedimentary, but somewhere it is showing igneous, somewhere it is showing that it is not igneous, not a sedimentary, it is the mineral. Okay, then whenever it is coming in the exam about the diamond, then please go to the sedimentary. Okay, go to the sedimentary because directly. It is igneous of quota. Diamond is made of what? Like carbon. Yeah. So igneous will be all carbon. Like fossil. How carbon contain a fossil. Yeah. And igneous rock does not contain a fossil. So that is sedimentary. Yeah, sedimentary. So under a lot of pressure, Pressure. diamond comes out Yeah. of carbon. Yeah, then they Then are. it becomes metamorphic. Yeah, of With course. this metamorphic is basically pressure, Pressure and temperature. temperature, yeah. But some are saying that it is not a type of rock, it is type of the minerals, and some are saying that it is the type of the sedimentary rock. What And mineral? How mineral? Diamond mineral is कैसा? वो तो स्टोन ही है ना, is the type of stone ना, but some are saying that it is the mineral, it comes from the carbon. Can it melt in the no, it can't melt. No. Minerals के भी components होते हैं ना, मिनरल अगर ये सारे कुछ कैटेगरी कुछ करते हैं तो Yeah. अगर लाइमस्टोन की बात करूं तो limestone is the sedimentary. Limestone is the sedimentary rock, and when it change the form and when it go to the metamorphic, then it will be the marble. Okay, when the limestone change its form and it converted into the metamorphic, then it will change into the marble. सही है, यहाँ तक क्लियर है? Online student, if you have some doubt, then please clear here.
madam. आगे NCERT में लिखा है मुझे ओ कैपिटल में लिखा है ये NCERT में लिखा है which one of the following is the hardest integer नहीं यहाँ पे टाइप Online student Nilesh. हाँ सर, नो डाउट, नो डाउट। Are you getting my point? Clear? यस सर, यस सर, यस। Here, who is this? Ashish, are you getting my point? Here? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट लेवल को ठीक है, अगर यहाँ पर सैंडस्टोन आएगा तो ओके, व्हाट इज द सैंडस्टोन? ऑफ कोर्स सैंडस्टोन सेडिमेंट्री, नाम ही उसका ये स्पेल कर रहा है। दिस टाइप ऑफ रॉक इज दिस, इट इज द सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary, and when it change the form, it become the quartzite. Okay, QUARTZITE. 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 फिर अगर यहाँ पर shell होगा, shell is also the sedimentary rock, and when it change the form, it became the slate. Slate. Shale is the natural type, natural gas type. Shale. What is shale exactly? I'm talking about the rock. रॉपान शेल है कि वो समुद्र से मिलता है उससे नहीं वो नहीं वो shale petroleum. yes No. shale gas Shale is the shale gas shale is the sedimentary rock. natural gas and petroleum may be extracted from oil shale. Shale sedimentary. It is somehow ये ऐसे वाले marina places with the shale gas. Shale gas. See, shale is the fine grained plastic Yeah, I should. sedimentary rocks. इधर ही देखना वो where is shale used? Here, shale is the fine grained plastic sedimentary rocks Yeah, actually. formed from the mud. Come by great minute. Shale gas. अरे shale gas is different and Uh-huh. shale rock is different. Shale deposits था ना वो? Next of flakes of clay. What is this? Shale gas is the natural gas found in the shale deposit where it is the trapped on the microscopic or the submicroscopic process. मतलब वो इसके मतलब shale gas नहीं सर अभी तो देखा यार ठीक है। बाद में जब शेल का जब फॉर्म चेंज होता है, ठीक है, बाद में जब शेल का जब फॉर्म चेंज होता है, then it is the slate and last is coal. What is the coal? Coal is the ये सेडिमेंट्री sedimentary ना, coal is the
sedimentary rock, and when it change in form, it become a graphite. The rock is crushed and then floated to release the shale oil. The same. When the rock is crushed, then we The can. rock, but only oil liquor. उसमें बहुत sulfur oil. तो जब यहाँ पर कोल का जब फॉर्म चेंज होता है तब ये यहाँ पर बनता है ग्रेफाइट. Graphite is हाँ. igneous ना? How? Granite is igneous, not graphite. Granite. Don't be confused in the granite and graphite. What is coal? Coal is the rock. How the coal can be igneous? Coal is the sedimentary. Because it's fossil. Yeah. When it contains the fossil phase, then only you can find there the carbons. Na? Now here also you can see the two type of the rock. Okay. Here also you can find the. Here also you can find the two type of the rock, which is cataclysm rock, and second one is recrystallization. ठीक है? Recrystallized rock. Okay. Catalytic rock means rock are formed by the mechanical disruption if the breaking or crushing of the original mineral without applicable change in the chemical character. ठीक है? It is the machinically. ठीक है? अगर वहां पर कुछ इफेक्ट हुआ, ठीक है, वहां पर कुछ इफेक्ट हुआ और बिना कुछ केमिकल चेंज में वो टूट गया और आगे जाके अगर उसमें कुछ चेंज आ गया उसके मिनरल्स में, then here we can find the catalytic rock. ठीक है? Then you can find, then here we can find the catalytic rock. ठीक है? Here there is the mechanical form. ठीक है? Catalytic rock, the formation of catalytic is the mechanical. मैकेनिकल फॉर्म. ठीक है? ये अपने आप से ये टूट जाता है विदाउट लूजिंग इट मिनरल्स. ठीक है? और आगे चल के इसमें अगर कोई मिनरल्स ऐड होता है, नहीं वेदरिंग की वजह से, जब इसमें अगर कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन मतलब अगर कुछ अगर हलचल हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, अंदर से कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ, तो वो विदाउट चेंजिंग इट मिनरल्स इट विल ब्रेकन डाउन. और आगे चल के अगर ये टाइप के रॉक में अगर आगे चल के कहां पर कुछ मिनरल्स में चेंज हुआ, देन वी कैन कॉल इट द मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है? एंड व्हाट इज द recrystallization of rock is the such rock are formed due to the recrystallization of the original material those the different. अब यहाँ पर सब केमिकल का काम करे. ठीक है? वही अगर यहाँ पर फिर से आगे वही अगर वोल्केनो आके यहाँ पर इसके साथ अगर मिल गया, then you can say here we can find the recrystallization of the rock. ठीक है? और you can say reproduction of the rock. ठीक है? पहले उसका फॉर्म कुछ और था और अब इसका फॉर्म कुछ और है. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? मतलब वो बीच से वापस क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल होता है, या वो नहीं करता है, फिर वापस रिक्रिस्टलाइज होता है. ऑनलाइन में कौन कौन है? नीलेश, आशीष. Yes, sir. Are you getting my point? Yes, sir.
Sir, please explain this again because there's Huh? some. What you gonna If say? you can explain this again, sir. Which one? Which one? Metamorphic. Yes. Whole No, no. metamorphic. The second one. Which one? Second one, sir. Which one? This Yes. one. Recrystallization of the rock. Yes. Okay. See, listen carefully. Such rock are formed due to the recrystallization of the original minerals. Those minerals which the different chemical formula and the crystallitic deltic are formed. ठीक है? वो रॉक जो है पहले से ही है, या वो इग्नियस है या वो सेडिमेंट्री है, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कब होगा? ठीक है, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कब होगा? उसका रिक्रिस्टलाइजेशन तब होगा जब वो रॉक में जो पहले से केमिकल है, ठीक है, या वो रॉक में पहले से जो मिनरल्स है उसमें अगर कोई चेंज आ जाएगा, या उसमें अगर अगर, अगर आप एक यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पर एक लाइमस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन सोचते हो चूना, चूने वाला मिट्टी, ठीक है, अब इसमें आयरन, अब इसमें मतलब अगर आप देखोगे तो लाइन में आपको आयरन नहीं मिलेगा, ठीक है, और अगर अंदर से जब वोल्केनो जब इरप्ट होगा, ओके, when there will be the eruption of volcano and if that volcano lava contain a high fluid of the iron, और वो लावा जाके जब इसके ऊपर वो एक अपना परत बना देगा, जब वो जाके ये लाइमस्टोन के साथ जब वो मिक्स हो जाएगा, तब आप इसे बोल सकते हो कि ओके दैट इट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लाइमस्टोन। ठीक है, बात को समझना, लाइमस्टोन में अभी तक आयरन नहीं है, ठीक है, लाइमस्टोन में अभी तक आयरन नहीं है। अगर अंदर से ही वो लावा निकलता है, और आपको पता है कि अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, अगर अंदर से लावा निकलता है और जब वो लावा जब इसको वो कवर कर लेता है, या वो लाइमस्टोन के जब वो कांटेक्ट में आता है, तो ऑफ कोर्स, तो अब पहले ये स्टोन में आयरन नहीं था, और अब जब ये लावे के कांटेक्ट में आया, तो इसके लिए हमको यहाँ पर आयरन भी हमको यहाँ पर मिल सकता है। आयरन का मतलब Fe, ठीक है, अब यहाँ पर हमें आयरन भी मिल सकता है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट फॉर्म में बोलूं कि अगर एक रॉक में कुछ मिनरल्स नहीं थे और जब वो कांटेक्ट में आया वोल्केनो से, तब हमको वहां पर कुछ एक्स्ट्रा और मिनरल्स हमको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो चेंज इन द फॉर्म मींस द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द रॉक, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर से पूछो। आशीष, Yes, sir. Understood. अब आपको ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो फिर ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है? अब ये आप मुझे समझाओ, ये है क्या, बताओ, चलो। So the whole one I have to explain you. Means, how did you explain us? But you can't explain why dear? I can explain you, but sir, not like that. How you explain Okay, us? means okay. There is no tension. You can explain me in your voice. There is no tension. I can understand it. I can understand it. Come on, say. Try to say. No problem. I can understand it. But please try to say. Sorry, sir, not this time because Okay. just a few things is going up. What? Just a few things which I don't understand from this. That's why. Okay. Okay, then finally you can understand this. Yes, sir. I have Okay. understood. Okay. सर एक डाउट था मुझे। हेलो, Yeah. What you are saying? एक डाउट था सर, ये कोल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक दोनों में थोड़ा ये हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर कर पाएंगे?
ओके, आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है, अब आप बोलिए। जो कोल है, जी आपने सेडिमेंट्री रॉक बोला, जी जी हाँ। तो मेटामॉर्फिक मॉर्फिक का प्रोसेस देखेंगे तो सेम, मतलब कोल का फॉर्मेशन वैसे ही होता है उसका अंडर हीट प्रेशर फॉर्मेशन एंड। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कोल का? नहीं, मतलब कोल सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक, वो सी थोड़ा डाउट हो रहा है। कोल जो होता है वो सेडिमेंट्री होता है, ठीक है। जो कोल होता है वो सेडिमेंट्री होता है। ऑफ कोर्स वो इग्नियस रॉक वो हो नहीं सकता, क्योंकि इग्नियस रॉक में फॉसिल हमें नहीं मिल सकते। और कोल हमें तब मिलता है जब हमको वहां पर अगर कोई वहां पर फॉसिल मिलता है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई पेड़ यहाँ पर गिर गया, ठीक है। जब यहाँ पर पेड़ गिर गया और अगर इसके ऊपर से कोई सेडिमेंट्री अगर इस पे आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर सेडिमेंट्री आते जाएगा तो फिर बाद में जाके ये जो पेड़ है आगे चल के वहां पर कार्बन का काम करेगा, ठीक है। फॉसिल मतलब कोई भी ऑर्गेनिक चीज, ठीक है, या तो वो पेड़ भी हो सकता है, या तो लीव्स भी हो सकता है, या तो वहां पर कोई जानवर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऊपर से अगर सेडिमेंट्री यहाँ पर आते जाएंगे और जब यहाँ पर जब रॉक बनेगा, तो ऑफ कोर्स जो भी ऑर्गेनिक मिनरल्स ये पेड़ में होंगे, या वो मरे हुए जानवर में होंगे, या कोई पत्ते में होंगे, तो ऑफ कोर्स उसका जो मैटर आएगा वो रॉक में भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको इग्नियस रॉक में नहीं मिल सकता, क्योंकि इग्नियस रॉक सीधा मैं या इग्नियस की बात नहीं कर रहा था, मैं या इसकी बात कर रहा हूँ, मेटामॉर्फिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मेटामॉर्फिक में अब क्या होता है, सी जब यहाँ पर कोल है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोल है, अगर कैसे भी करके अगर ये कांटेक्ट में आ गया वोल्केनो के, अगर ये कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, देन इट विल कम चेंज, देन द कोल बिकम अ ग्रेफाइट, एंड देन यू कैन से द ग्रेफाइट इज द मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। क्योंकि जब वोल्केनो के कांटेक्ट में आएगा, या जब वो लावा या तो वो मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा वो कोल, तब बाद में वो जो जाके बन जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। या वो कुछ नहीं है, इट इज द चेंज इन द फॉर्म, इट इज ओनली चेंज इन द फॉर्म। ये पहले कोल था, और जब ये वोल्केनो या तो वो लावा के कांटेक्ट में आया, तो उसके जो मिनरल्स थे, उसके जो केमिकल पार्टिकल्स थे, उसमें भी चेंजिंग आ गए, और आगे चल के वो कोल जो पहले सेडिमेंट्री था वो अब बन गया ग्रेफाइट, और अब हम उसे बोलेंगे मेटामॉर्फिक, ठीक है। इसके लिए तो मैंने यहाँ पर सिखाया रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द रॉक। रिक्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर किसका हुआ है, यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है कोल का हुआ है, क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला भी यहाँ पर चेंज हुआ है, उसका मैटर चेंज हुआ है, बाद में वो बन गया है मेटामॉर्फिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? यस, ओके, थैंक यू। ओके ठीक है, अब मैं आगे में बढ़ता हूँ। सुनाई नहीं दे, यहाँ पर हमारा रॉक खत्म होता है, ठीक है। देयर वाज द थ्री टाइप ऑफ रॉक, igneous, sedimentary and metamorphic. Okay, now let me talk about the rock system, ठीक है। रॉक सिस्टम, रॉक अलग और रॉक सिस्टम अलग, उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं इसको रॉक सिस्टम को जियोमॉर्फिक। आई थिंक एक स्टैंडर्ड के इसको मिलेगा। ज्यादा करके जो एग्जाम में जो ज्यादा करके पूछा जाएगा, वो ज्यादा इग्नियस में कौन कौन से रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक में कौन कौन से रॉक्स होते हैं, और सेडिमेंट्री में कौन कौन से रॉक्स होते हैं, और जितना हो सके वो सब एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल के, मैंने यहाँ पर इंक्लूड करके मैंने आप लोगों को वहां पर सिखाने की मैं कोशिश किया हूँ, ठीक है। और जो मैं आगे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, द सिस्टम ऑफ रॉक, ठीक है, इसके बहुत कम चांसेस है एग्जाम में आने के, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो आपको बोलूंगा आपको वही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और इससे ज्यादा कुछ आएगा तो इससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है।
ओके, आज तक तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन अगर आगे आगे बना तो ऐसा ना हो जाए कि आपको वहां पर कुछ मतलब सर बेसिक्स में देखते हैं तो काम आता है। या आगे चल के मगर ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तो इससे पहले रॉक सिस्टम चालू करने से पहले मैं रॉक साइकिल सीखा। ठीक है, रॉक साइकिल वो अभी हमारा बाकी है। ठीक है, व्हाट इज द रॉक साइकिल? रॉक साइकिल मतलब इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट में कैसे बनता है, जो सेडिमेंट है वो मेटामॉर्फिक में कैसे बनता है, और वो फिर से जो मेटामॉर्फिक है वो फिर से इग्नियस कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक चीज ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, सबसे पहले मैग्मा। ठीक है, ये ग्रुप का है। सबसे पहले है मैग्मा। सबसे पहले है मैग्मा। व्हाट इज द मैग्मा माय डियर स्टूडेंट? से व्हाट इज द मैग्मा? क्या क्या जो लावा जो जब बाहर आता है, जमीन के बाहर आता है, तो हम उसे बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, उल्टा ना, जो मैग्मा जमीन के बाहर आता है उसको कहते हैं लावा। हाँ ना? क्या होगा? ओके, जो भी मैग्मा या जो भी लावा जब वो मैग्मा जब बाहर आएगा देन इट इज नोन एज द लावा। ठीक है, पहले ये है मैग्मा, और जब ये बाहर आएगा इट विल बिकम द लावा, और जब वो जमीन पे जब वो सूख जाएगा, जब वो फैल के पूरा सूख जाएगा, जब उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, देन इट विल बिकम अ व्हाट इट विल बिकम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? igneous rocks. इग्नियस रॉक। वेरी गुड। ठीक है, इग्नियस रॉक सबसे जो सेंसिटिव करते हो ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन सही ना? Solidification of magma, then it will change into the igneous rock. Okay, ठीक है। अब यहाँ पर इसके दो चांसेस बनते हैं। ठीक है, सीधा मेटल या तो ये जो igneous rock है या तो ये फिर से जाके ये मैग्मा बन सकता है। कैसे मैग्मा बन सकता है कि जहां पर वो रॉक है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लेट है और इस पे igneous rock है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक प्लेट का सब्जेक्शन हुआ, अगर ये नीचे अगर गया तो अंदर तो हीट है, ठीक है, वो इतना हीट गर्म रहेगा कि उसको ये पिघला देगा, जो भी igneous rock है उसको वो पिघला देगा और उसको फिर से बना देगा मैग्मा। कुछ ऐसा रहता है ना फॉर्म। फिर मेटामॉर्फिक को क्यों नहीं पिघलाता? मतलब मैग्मा एक बाहर आता है और फिर सेडिमेंट्री के साथ मिक्स होता है, तो फिर वो सेडिमेंट्री नहीं होता है, वो भी तो मेल्ट होने के बाद ही उसको अच्छा, तभी तो उसका जाके चेंज होता है ना। वो अंदर जाके वो लिक्विड नहीं बना है, वो ऊपर वो सूखा है। ठीक है, ओके, कुछ ऐसा ही होता है ना। जब वो अपना जो प्लेट जब वो सब्जेक्शन होगा तो इसको बोलेंगे सब्जेक्शन। ठीक है, आप लोग कभी समझते हैं कि यहाँ पर जमीन अपना दब गया, ठीक है, दब गया, या तो जब ये प्लेट जब टकराव होता है, मैंने आप लोगों को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैंने अच्छे से समझाया था, जब प्लेट जब टकराव होएगा तो एक साइड पे जब प्लेट अंदर जाएगा, जब वो सब्जेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये गलना चालू हो जाएगा ड्यू टू द इंटेंस हीट। ठीक है, जब यहाँ पर इंटेंस हीट हो जाएगा तो ये सब गल जाएगा और फिर से ये मैग्मा बन जाएगा और वो अपना जगह खोजेगा कि मैं अब निकलूं तो निकलूं कहां। ठीक, और जहां पर इसको वीक पॉइंट मिला वो वहां से निकलना
चालू हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वॉल्केनो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी इग्नियस रॉक का ये होता है कि अगर इग्नियस रॉक, ठीक है, अगर वो सबडक्ट हो गया जमीन के अंदर और वो पिघल के फिर से वो बन सकता है मैग्मा, ठीक है। इस समझ में आया? ओके, मेल्ट, मेल्ट, ओके। और आगे चल के अगर ये इग्नियस रॉक का अगर वेदरिंग और इरोजन हो, ठीक है, आगे चल के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आगे चल के अगर इसका वेदरिंग, वेदरिंग है इरोजन, ठीक है, आगे चल के जब इग्नियस रॉक का वेदरिंग है इरोजन होगा तब ये क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री क्या रॉक, कैसे बनेगा सेडिमेंट्री रॉक, वेदरिंग होने की वजह हाँ, तो अगर वेदरिंग होगा तो वहां पर वो रॉक कैसे बनेगा, कैसे बनेगा रॉक, कैसे बनेगा, सीधा सीधा मतलब इग्नियस रॉक का अगर वेदरिंग और इरोजन होगा तो सीधा वो रॉक बन जाएगा, सेडिमेंट पहले बनेगा ना, वो पहले वो क्या बनेगा, पहले वो बनेगा सेडिमेंट, पहले वो बनेगा सिर्फ सेडिमेंट, और जब सेडिमेंट का जब लिथिफिकेशन होगा, ठीक है, जब सेडिमेंट का लिथिफिकेशन होगा तब ये जाके बनेगा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ओके। अब इसके भी सेडिमेंट ऐसे एकदम लूज होगा ना वो, एकदम वो लूज होगा, सेडिमेंट मतलब वो एकदम लूज पार्टिकल, ठीक है, उसमें फिर भी हाँ। पार्टिकल्स थोड़े जमे हुए होंगे। हाँ, लेकिन जब वो उसका लिथिफिकेशन हो जाएगा तब वो बन जाएगा रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। अब यहाँ पर भी इसके दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, या तो ये इसके तीन पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है, या तो ये आगे चल के ये फिर से ये वेदरिंग होके फिर से ये सेडिमेंट्री रॉक फिर से वेदरिंग होके ये फिर से बन सकता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, फिर से यहाँ पर हो जाएगा इसका सेडिमेंट, वेदरिंग और तब ये बनेगा इसका सेडिमेंट, ठीक है। या तो फिर से अगर ये सबडक्ट हो जाएगा, ये अंदर चल जाएगा तो ये फिर से ये बन जाएगा मैग्मा, ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा मैग्मा। इसके थर्ड पॉसिबिलिटी है, अगर ये आगे चल के बन जाता है, अगर यहाँ पर चेंज इन फॉर्म हुआ, अगर ये कांटेक्ट में आया वॉल्केनो के, ठीक है, ये अभी गला नहीं है अंदर जाके, ये सिर्फ उसके वॉल्केनो के कांटेक्ट में आया, जब ये वॉल्केनो के कांटेक्ट में आएगा मतलब चेंज इन द फॉर्म, देन इट विल बिकम अ मेटामॉर्फिक, दिखाई दे रहा था वहां पर मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, उसमें वो बहुत डिटेल दिया ना, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। when it will come into the contact, when it will come in the contact of the volcano, then it will change its form and then you can see a formation of the, then you will form here the metamorphic rock, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी होंगे ना यहाँ पर, या तो वो वेदरिंग होके वो सेडिमेंट हो जाए और वो बन जाए सेडिमेंट्री रॉक, या तो वो आगे चल के सबडक्ट हो जाए, पिघल जाए और वो बन जाए मैग्मा, और जब मैग्मा आएगा बाहर तो वो फिर से बन जाएगा इग्नियस रॉक, और ऐसे ही अपना साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको ये साइकिल समझ में आ रहा है तो आप बोले, नहीं तो अगर कहीं पर डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। एक और चीज मेंशन किया है, कोरिलेशन और डिविएशन। नीलेश, हाँ सर, क्लियर है सर। आपको ये साइकिल समझ में आ रहा है? हाँ 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 बिल्कुल, 100%? हाँ 100%। ओके ओके, क्या है डिविएशन
Thank you. See, in the process of making a metamorphic rock, ठीक है, in the process of making the metamorphic rock, if the rock grains, मतलब छोटे छोटे जो grains है, if the rock grains or the mineral get arranged in the lag, ठीक है, in the process of making the metamorphic rock, अगर वहां पर जो grains है, मतलब rock के जो grains है, छोटे छोटे जो grains है, when it make a lag, वो अगर वो sedimentary rocks के जो grains है, ठीक है, या किसी भी टाइप का वो rock है, अगर उसका grain है, अगर यहाँ पर वो एक layer जैसा बना दे, ठीक है, एक मतलब एक चद्दर जैसा बना दे, एक layer जैसा बना देता है, then that arrangement is called as the foliation और lineation। और कुछ है वहां पे? वही है ना, ठीक है। सी, अगर मेटामॉर्फिक रॉक बनने के जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें अगर जो ग्रेन्स रहते हैं ना, ग्रेन्स रॉक ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे रॉक्स, ठीक है, छोटे छोटे रॉक्स अगर वहां पर ऐसे मतलब वो पूरे जमीन पे वो पिच जाते, ठीक है, वो अगर पिच जाते, वो पूरे ऐसे लेयर बना लेते हैं अपने, तो वो स्ट्रक्चर को बोला जाता है फोलिएशन और लिनिएशन। बस इसका यही मतलब, ठीक है, अगर उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो अगर पूरा लेयर बना देगा, तभी उसको बोलते हैं फोलिएशन और यू कैन से लिनिएशन, ठीक है। तो फिर वो ग्रेफाइट भी सेम था ना, नहीं ये था शेल भी सेम था, शेल भी सेम टाइप था, शेल में था उसका वो था स्लेट था, शेल में सेगमेंट नो यहाँ तक सबको क्लियर है? इग्नियस में सेडिमेंट यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट मिलेश, यहाँ तक आपको क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब ये फोलिएशन ये फोलिएशन खाली मेटामॉर्फिक रॉक का ही होता है क्या सर? नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स ये जो है ना फोलिएशन, तभी तो मैंने जो वर्ड है, तभी तो मैंने इस्तेमाल किया, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, नहीं तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता फॉर्मेशन ऑफ एनी रॉक, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब सिर्फ मेटामॉर्फिक में देखा जाता है, तभी उसको बोलते हैं फोलिएशन, और यू कैन से हियर, क्या बोलते हैं उसको, और यू कैन से हियर लिनिएशन, ठीक है। जब ये प्रोसेस, जब वो लेयर ग्रेन ऑफ रॉक जब वो लेयर बना देगा, तो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेटामॉर्फिक रॉक, तभी आप उसको बोल सकते हो फोलिएशन और लिनिएशन। क्लियर है? ओके डियर। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ रॉक सिस्टम का, ठीक है। बेसिकली जो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो ये तीन ही रॉक पे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इतना भी वो इजी नहीं रहेगा, वहां पर आपको सीधा मैचअप आ सकता है, रॉक टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। और यू मींस यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, और फिर पूछ लिया जाएगा is the marble is the igneous rock, ठीक है। correct the means choose the correct statement. So marble is not a igneous rock, marble is the sedimentary, it is the metamorphic rock, ठीक है। जब लाइन मार्बल का सेडिमेंट्री क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ग्रेफाइट, चूना लाइमस्टोन, ठीक है। ये हमने दिया था सर टेस्ट पता है? हाँ, हमने इस पे टेस्ट किया था। तो आगे चल के आपको उन लोग मतलब स्टेटमेंट बना के उन लोग पूछ सकते हैं, या तो आपको उन लोग 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए वो मैचअप में उन लोग दे सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं रॉक सिस्टम। ठीक है, अभी तो मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगर पूछे भी होंगे तो सिर्फ एक या दो से ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को अगर एग्जाम में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि आखिर ये है क्या, तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिखा रहा हूँ, वही उतना ही पढ़ के जाना, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आए। We are not a geological student. We are here for crack the UPSC or the MPSC exam. ठीक है, तो हमें इतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। don't challenge. Otherwise, I will give payment of it. It's my favorite food. चलो वही मेक की नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आर्चियन रॉक सिस्टम। ठीक है, आर्चियन रॉक सिस्टम। Archean rock. Archean rock, or you can say the Precambrian rock, or you can say the Precambrian rock. ये लगभग 2.5 बिलियन ईयर है वो, ये या बना या 2.5 बिलियन ईयर एगो। ईयर याद रखने का कोई समझ लो कि जब वो पैंथेलादा जब वो पैंजियन जब टूटा होगा, ठीक है, तभी ये सिस्टम बना होगा। ठीक है, जब वो पैंजिया जब वो टूटा होगा, जब वहां पर सब वो सेपरेट हो रहे थे, तब जाके ये बना था। ठीक है, नो नीड टू रिमेम्बर द ईयर। पहले लैंड आया था। ठीक है, पहले लैंड आया था वो। अगर मैं पूरा मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो नेक्स्ट टॉपिक, ड्यू टू द फर्स्ट द अर्थ वाज द हार्ड बॉल। ठीक है, फर्स्ट द अर्थ वाज द हार्ड बॉल। यहाँ पर तो हीट बहुत हो रहा था और अर्थ के आसपास बादल भी बहुत थे। जब बारिश गिर रहे थे तब वो बारिश धरती पे नहीं आ रहे थे, वो ऊपर से ऊपर वो सोख जा रहे थे। ठीक है, वो आगे चल के वो सोख जा रहे थे। ठीक है, आगे चल के जब अर्थ थोड़ा सा ठंडा हुआ और ऊपर से जब कार्बन डाइऑक्साइड कुछ जब वो वाटर में जब डिसॉल्व होने लग गए, तब जाकर वहां पर भारी बारिश हुआ था। और मतलब वो सालों साल तक वो बारिश हुआ, सालों साल, ईयर इन द ईयर, तब जाके वो बना था पैंथेलादा। और एक हमारा था लैंड, वो था क्या था, पैंजिया ना। हाँ, ठीक है, अब इसका बात करते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। थियरी है। इट इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। अब ये कौन सा टाइप का ये रॉक है, ये आप लोग को बता। ठीक है, ये मैं नहीं बताने वाला, नॉट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि
तीनों टाइप का रॉक मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। नाउ यू विल से व्हाट इज दिस? वैसे भी इजी है। ये कैसे बना ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन due to the solidification of lava on the earth surface। ठीक है, इसका मतलब पहले जो हम लोग का जो ये था ना लेयर, ठीक है, जो पहले लेयर था, लेयर बनाने का काम एल्काइन और ट्री कैम्ब्रियन रॉक में ही हुआ, ठीक है। पहले ऐसा एक लेयर बना था, तब जाके इसके ऊपर चेंज आधे आधे लग गए। मतलब एक्रियन रॉक सोचो मतलब कितने नीचे होंगे, ठीक है। मतलब जो भी लेयर का काम है इसके ऊपर हुआ, ठीक है। लावा जो फटा बाद में वो जब फैलना चालू हुआ, जब वो फैलना चालू हुआ, तब जाके जो भी अब आगे वाला जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो सब अब इसके ऊपर अब डेवलप होना चालू होगा। तो वो कोर के ऊपर रहेगा ना? कोर के ऊपर नहीं, क्रस्ट है ना, वो क्रस्ट है ना, क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट है ना। कोर में कहां चला गया? Coal is like something like bird. Coal. Like natural thing like bird. इट इज द या तो क्रस्ट पे मिलेगा ना, कोर पे अपना चले गए, ठीक है। देन Is it coal या coal? कोर ये Coal. कोर No, क्रस्ट पे। coal होगा या फिर अगर coal पे होगा तो फिर लावा लिक्विड कैसे आ रहा है? So how it formed? It formed due to the solidification of lava on the earth surface, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर डिस्टिंग्विश हमको करने, ठीक है। सबसे पहला आएगा इसका नो डिस्टिंग्विश, एक्ट्रियन, ग्रेनाइट एंड सिस्ट, SCHIST, सिस्ट, ठीक है। एक्रियन ग्रेनाइट और एक्रियन सिस्ट, ठीक है। एंड इसका सेकेंड पार्ट आएगा वार सिस्टम। इसका सेकेंड पार्ट आएगा वार सिस्टम। हमारे बाहर रहेगा हुआ। नहीं, हाँ। धरवार, ठीक है, धरवार सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। It is the oldest rock system. It formed due to the solidification of lava on the earth surface. इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एर्कियन ग्रेनाइट एंड एक्रियन सिस्ट। और इसके सेकेंड पार्ट है धारवार सिस्टम, ठीक है। इसको रख कर दो। ओके, Geography option है। नो कमेंट्स। उसके हिस्ट्री में हमने मुझे geography अब geography वाला पेज है। ठीक, पहले बात देखते हैं एक्रियन ग्रेनाइट एंड एक्रियन सिस्ट, ठीक है। it is the azoic in nature, ठीक है। it is the azoic, AZOIC, azoic मतलब अनफॉस्यूल। यहाँ पर फॉस्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे नाम हो जाता होगा। igneous rock हो गया ना? या ऑफ कोर्स ये igneous rock है। जब मैंने बोलते कि it formed due to the solidification of magma, तो बात ही खत्म। इससे इसके अंदर बहुत हीट आता होगा ना। जब इसके अंदर हीट आता होगा तभी तो ये ऑफ कोर्स ये वोल्केनो से बना है। जब सॉलिडिफाई होता होगा, it was the first phase, या correct?
first layer closes the fat cells. तो constantly इसको बीच मिलता ही होगा. तो इसको बोलते हैं external sphere में exact होगा. ये क्रस्ट के ऊपर, Crust के ऊपर है और mantle के ऊपर. ये क्रस्ट के ऊपर, Crust के ऊपर. या ये क्रस्ट के ऊपर. अब जितने भी लेयर आएगा, जो lithosphere आएगा, lithosphere का first layer है. अब जितने भी लेयर आएगा वो सब इसके ऊपर आएंगे. ठीक है. ओके. इट इज द अजॉइक इन नेचर. अजॉइक इन नेचर मतलब यहाँ पर कोई भी फॉसिल हमको नहीं मिलता है. ठीक है. एंड इट इज द फॉइलेटेड. फॉइलेटेड मतलब थीन शीट. ठीक है. ये पूरा फैल गया है, ये सब जगह ये पूरा फैल गया है एंड इट इज बिहेविंग लाइक अ थीन शीट. ठीक है. तो इसके लिए इसको बोलते हैं फॉइलेटेड. फॉइल पेपर. वो वैसा है. मतलब एक बात याद रख लो. ठीक है. फॉइल पेपर कैसे वो पूरा फैल जाता है. पूरा वो फैला हुआ होता है, वैसे ये इसको बोलते हैं फॉइलेटेड. ठीक है. ये पूरा वो फैला हुआ रहता है. इतना थिन लेयर, इतना भी थिन लेयर नहीं है, तोड़ दो. ठीक है. इट इज इन द रैंडम शेप. रैंडम शेप इसका कोई भी शेप नहीं रह सकता. इसके ऊपर डिपेंड करता है ये कौन सा भी ये शेप ये ले सकता है. ठीक है. रैंडम शेप. ठीक है. एंड इट इज द प्लूटोनिक इंट्रक्शन. ठीक है. ऑफ कोर्स ये सबसे नीचे देन इट कैन बी द प्लूटोनिक इंस्ट्रक्शन. प्लूटोनिक इंट्रक्शन. अब ये कहां पर मिलता है? यू कैन फाइंड दिस इन द, ये आपको मैं ये एट एटलस में वो नहीं मिलेगा. ये आपको कहां पर मिलेगा? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड छोटा नागपुर इन झारखंड. कोस्टल एरिया है. हाँ, छोटा नागपुर मतलब जहां पर ये है ना, जहां पर वो वोल्केनो से कुछ वहां पर पार्ट्स बने, जहां पर लैंडफॉर्म हुए, तो आपको ये वो जगह दिखाई देने में आएगी. हाँ, छोटा नागपुर भी तो वो भी तो है ना प्लेट्यू, तो भी तो वोल्केनो से बना है. ठीक है. तो कौन सा है वो? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. मतलब नियरली ज्यादा ये है कहां पर? साउथ में है. ठीक है. कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड छोटा नागपुर इन झारखंड. ठीक है. और अगर गिनीस यहाँ पर जो है गिनाइसेस की अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, गिनाइसेस की अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो यहाँ पर मिलते हैं क्रिंटन एंड कैब्रो. हाँ, क्रिंटन एंड कैब्रो मतलब अब यहाँ पर जो है गिनाइस है, गिनाइस में लगभग वो ग्रेफाइट के कंपोजिशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. ठीक है. क्रिंटन, ग्रैंटन एंड कैब्रो. ठीक है. और सिस्ट में आपको क्या मिलेगा? मिका सैल नहीं, क्लोराइड. ठीक है. मिका, ताल, TALCA, टैल और क्लोराइड. ठीक है. क्लोराइड. तो ये सब बस इतना ही आपको याद रखना, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है. इट इज द अजॉइक इन नेचर मतलब यहाँ पर हमें कोई भी फॉसिल देखने नहीं मिलता है. ठीक है. इट इज फॉइलेटेड मतलब ये पूरा थिन रहता है, ये पूरा फैला हुआ रहता है. इट इज रैंडम इन शेप, इसका कोई भी शेप नहीं रहता. इसका अब इसके ऊपर मर्जी रहता है, ये कैसा भी शेप ये ले सकता है. it can be the plutonic instruction. Where it is found, they can ask you where it is found in Karnataka, Andhra Pradesh.
तमिलनाडु हाँ Intrusive है ना, plutonic intrusive. आपने Intrusive है ना? intrusion लिखा है. कहाँ पर Intrusion. इंट्रूजन मतलब वो अंदर ही रहता है, उसका मतलब ठीक है। तो कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड छोटा नागपुर इन झारखंड, ठीक है। But not Kerala. Karnataka. हाँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड छोटा नागपुर ऑफ झारखंड, ठीक है। और बात करते हैं धारवाड़ सिस्टम की। तो मानेगा. आपका आपके पेपर में क्या है? होती है, बोल रहा है नीलेश, आपको ये समझ में आ रहा है? हाँ सर क्लियर है। ओके ओके। धारवाड़ सिस्टम ठीक है। इट इज द, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम इज हाईली मेटामॉर्फाइज्ड, मेटामॉर्फोस्ड, ठीक है। इट इज हाईली मेटामॉर्फोस्ड of sedimentary rock system, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंक्लूड क्यों किया है सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम, ताकि यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इग्नियस रॉक का यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ है। यहाँ पर किसका मेटामॉर्फिज्म हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है मेटामॉर्फोस ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, ताकि आप लोग ये ना समझ ले कि ये इग्नियस भी हो सकता है, ये मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है। तो नहीं, धारवाड़ सिस्टम इज द मेटामॉर्फोस ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। इट इज द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोस रॉक, ठीक है। इट इज क्या? धारवाड़ इज द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोस रॉक, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोस रॉक, ओके। found in abundance in the Dharwad district of Karnataka, ठीक है। इसका जो ज्यादा अगर ये टाइप का रॉक सिस्टम अगर आप जाओगे ढूंढने के लिए तो ये ज्यादा ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में वहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है तो वही डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ये रॉक सिस्टम का यहाँ पर नाम रख दिया गया, ठीक है। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूं, इट इज द वेरी इकोनॉमिकल, ठीक है। इट इज वेरी इकोनॉमिकल। व्हाई इट इज इकोनॉमिकल? क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रॉक मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक द आयरन और
मैग्नीशियम, कॉपर, लीड, गोल्ड एक्सेट्रा। गोल्ड में कहाँ पर है? देखो है ना पोलर, पोलर और ये ना कर्नाटक में है ना पोलर गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रीशियस मेटल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए ये जो सिस्टम है इट इज वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीशियस मेटल आपको मिलेगा, आयरन और, ठीक है, और यू कैन से कॉपर, लीड, मैग्नीशियम और गोल्ड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब इट इज वेरी इकोनॉमिकल फॉर द पीपल। ठीक है, और ये एरिया ये कहाँ पर मिलेगा? एरिया सेम जो एरिया में वहां पर बताया। ठीक है, ऑफ कोर्स कहां पर मिलेगा वो? तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका। ऑफ कोर्स ये पूरा सब जगह तो नहीं मिल सकता ना। सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ छोटा नागपुर में भी ये मिलता है। लेकिन ये छोटा नागपुर में और उड़ीसा में ये बहुत मतलब बहुत नाम मात्रा में मिलता है। ठीक है, लेकिन मिलता ये उड़ीसा में भी और छोटा नागपुर में भी ये मिलता है। ठीक है, इतना ही यहाँ पर पढ़ना है इसको। ठीक है, इससे ज्यादा ना इससे कम। जो भी एग्जाम में आएगा इसमें से ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो बात करते पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम, ठीक है, पुराना रॉक सिस्टम में दो डिवीजन हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुडप्पा सिस्टम एंड विंध्या सिस्टम एंड विंध्यन सिस्टम। ठीक है, पुराना रॉक सिस्टम में हमें दो टाइप के डिवीजन देखने के लिए मिलते हैं, एक है कुडप्पा और दूसरा है विंध्यन। ठीक है, कुडप्पा नेम टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, जैसे कि धारवाड़ था, इट वाज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हाँ, धारवाड़ मैंने बताया ना, इट इज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीलेश। कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु, कर्नाटक ना, उड़ीसा। जो धारवाड़ और जो रॉक सिस्टम का जो नाम पड़ा, आपका ध्यान कहाँ पे? जो धारवाड़ जो रॉक सिस्टम का जो नाम पड़ा, वो धारवाड़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो सबसे ज्यादा धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है इन कर्नाटक। ये जो धारवाड़ है इट इज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच इज इन कर्नाटक। तो आपका ध्यान कहाँ था? वो मैंने गोल्ड माइन बोला था, गोल्ड माइन की मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो सेम यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान नहीं रहता फिर बाद में करने नहीं आता। फिर बाद में ये कुडप्पा सिस्टम। ठीक है, कुडप्पा इसका नाम क्यों पड़ा? इट इज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट इन द आंध्र प्रदेश। ठीक है, इट इज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट इन द आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है कुडप्पा रॉक system. It is formed when the sedimentary rock like the sandstone, limestone, etc. are deposited in the syncline fold. ठीक है, syncline fold जब वो माउंटेन के जब वो नीचे वाले भाग में, ठीक है, अगर वहां पर सेडिमेंट होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट होते हैं और जब वो उड़ गए, जब वो माउंटेन के निचले भाग में, मैंने बताया था ना सिक्लाइन एंटी सिक्लाइन, जब वो सिंक्लाइन जब वो नीचे वाले ढलान में जब वो यहाँ पर सेडिमेंट सब वो जमा हो जाएंगे, जब वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे और तब वो बन जाएंगे रॉक, तब जाके उसको बोलते हैं कुडप्पा रॉक सिस्टम। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर क्लियरली बोला है व्हेन द सेडिमेंट रॉक्स लाइक द सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एक्सेट्रा एंड क्ले आर डिपॉजिट इनटू द syncline fold. ठीक है, contain again here it contain the
of course iron ore, magnesium, copper, cobalt, nickel, but it not contain the precious metal like gold. ठीक है? और कौन सा आयन है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, मतलब यहाँ पर सब आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर प्रीशियस मेटल गोल्ड या उसके टाइप का कोई अनरन टाइप का वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा. ठीक है? इट इज द लार्ज डिपॉजिट ऑफ द सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन. ठीक है? ऐसे पत्थर जिससे हम बहुत हाई क्वालिटी का सीमेंट बना सकते हैं, तो वैसे पत्थर हमें यहाँ पर अच्छे खासे मिल जाते हैं. ठीक है? ओके, ठीक है ना ईशा? So gold is mineral or is it a metal? क्या? Gold. गोल्ड इज द मेटल. Metallic. It is the it is the metal. Gold is the metal and diamond is the mineral. Diamond is the mineral. Diamond is the mineral. Diamond is the mineral. अब यहाँ पर आएगा विंध्यन सिस्टम. ठीक है? विंध्यन सिस्टम मीन्स नेम फॉर द ग्रेट विंध्यन माउंटेन. कहाँ पर है विंध्यन माउंटेन? ऊपर ऊपर. हाँ, महाराष्ट्र के ऊपर. मतलब एमपी साइड में ना, एमपी में है ना विंध्यन रॉक माउंटेन. उसके नीचे क्या है? क्या है? मतलब सतपुरा. सब पूरा. उसके बीच में क्या है? नर्मदा. ठीक है? इट इज द एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है? इट इज द एंशिएंट मतलब ये बहुत पुराना सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है? एंशिएंट sedimentary. So they are a plate of Africa. Yeah. Plate. तो हमारे Gondwana पास land. Angea. We are the part of Gondwana. We are the part of. ऊपर गया वो जो हमको छोड़ के गया वो हो गया यूरेशिया गया. ठीक है? तो हमारा अफ्रीका से होता था. तो अफ्रीका वालों को जो हमारे पास जो मिनरल्स वगैरह है वो अफ्रीका से होता है. सबसे ज्यादा उनके पास. हाँ, उधर गोल्ड जाता है. बहुत ज्यादा. ठीक है? इट इज द एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है? ये जो है विंध्यन सिस्टम, इट इज द एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक. इट इज द 4000 मीटर थिक. ठीक है? इट इज द 4000 मीटर thick. Okay. It is the 4000 meter thick. Means you can say it is the Deccan Tract. Yeah. Of course. Like Of course. लेकिन Large area of this belt is covered by the Deccan Tract. ये एक बेल्ट है. ठीक है? और इसके ऊपर बना है Deccan Tract. ठीक है? ये एक बेल्ट है. ये एक, हाँ, ये एक एरिया है और इसके ऊपर बना है डेक्कन ट्रैक्ट. ठीक है? इसका जो लार्जर एरिया है इट इज कैप्चर्ड बाय द डेक्कन ट्रैक्ट. ठीक है? लार्ज बेल्ट कैप्चर्ड बाय डेक्कन ट्रैक्ट. ओके ना? ठीक है? और ये सुपर एक्सपोज कहां पर होता है? सुपर एक्सपोज. अब यहाँ पर तो ये तो इसको तो डेक्कन ने तो कैप्चर कर लिया. ठीक है? तो ये एक्सपोज कहां पर होता है? ठीक है? सुपर एक्सपोज जहां पर मतलब ये जमीन के पास ही है. ये कहां पर है? हाँ, डेक्कन मतलब ये कहां पर है? बुंदेलखंड. बुंदेलखंड ऊपर जा रहा है. हाँ, एमपी. ठीक है? एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान. ठीक है? जहां पर ये सुपर एक्सपोज है, जहां पर ये मतलब हम पे देख सकते हैं. ठीक है? जहां पर ये एकदम ऊपर की साइड. ठीक है? इसके ऊपर कोई भी पत्थर या कोई भी सेडिमेंट्री या कोई भी ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक इसके ऊपर नहीं है. यहाँ पर ये सुपर एक्सपोज है. और ये क्या है? एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक. एंशिएंट बोलते हैं तो एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक. इसका पुराना
बस इतना याद रखोगे एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक, बस ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा, लार्ज बेल्ट इज कैप्चर्ड बाय द डेक्कन ट्रैप एंड वेयर इट इज द सुपर एक्सपोज, इट इज सुपर एक्सपोज इन द सुपर एक्सपोज इन राजस्थान बुंदेलखंड, ठीक है, राजस्थान है बुंदेलखंड, ठीक है। इट इज हैविंग द डायमंड बेरिंग रीजन, हियर यू कैन फाइंड द डायमंड बेरिंग रीजन। Here we can find the diamond bearing region, ठीक है। यहाँ पर हमको विंध्यस रेंज में हमको डायमंड भी मिल सकता है। तो स्टेट के नाम देखा ना कहाँ पर ये to the presence of carbon, जब वहां पर बोलते हैं it is the ancient sedimentary rock, ठीक है। तो जहां पर वो डेक्कन के नीचे नहीं आए होंगे, ठीक है, जहां पर वो मतलब बीच बीच में जहां पर वो एक्सपोज होंगे, तो वहां पर आपको वहां पर टाइम मिल सकता है। वो मध्य प्रदेश में भी कोई 10 फॉरेस्ट उसको काट के वो लोग फ्रैगमेंट्स हाँ, हाँ। बहुत कम ही बचा, सीलिंग तक बताओ। अरे बहुत कम बचा इसमें, इसका और कुछ बचा ही नहीं। हाँ, सर के ऊपर से चला जाएगा इसके। सबसे पहले तो हाफ एन आवर तो हमारा तो वेस्ट ही है, वो बार बार कनेक्शन कनेक्शन, हाँ 5:30 बज चुका। बनाना है ऐसे करना है, ऐसे लिखे है ना, बात करते हैं द्रविडियन, ये बाद में और भी है, लेकिन उसको हम इजीली हम लोग जानते हैं, जैसे कि डेक्कन ट्रैप हो गया, ठीक है, गोंडवाना सिस्टम हो गया। द्रविडियन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम, ठीक है। इट इज फाउंड इन द एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन। पेनिसुलर रीजन मतलब है वो ट्रायंगल, इट इज इन द एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन, ठीक है, मतलब हिमालय एंड गंगा प्लेन्स में हमको ये मिलता है। आई टॉक्ड अबाउट एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन, मतलब पेनिसुलर के ऊपर, ठीक है, एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमें कहाँ पर मिलेगा, हिमालय एंड गंगा प्लेन में, ठीक है। एंड आर वेरी रेयर टू द पेनिसुलर रीजन, ठीक है। इसको हमें दिखता नहीं है अभी, ठीक है। in the peninsular region, it is very rare in the peninsular region, ठीक है। it is also known as the carboniferous rock। carboniferous rock मतलब आपको नाम से क्या चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें कोल मिल सकता है। So
इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, कार्बेनिफ्यूरस रॉक। मतलब यहाँ पर हमें द्रविडियन रॉक सिस्टम में हमें यहाँ पर कोल मिल सकता है, ठीक है, या मिलता है, मिल सकता है। इट इज द कार्बेनिफ्यूरस रॉक। Here is the abundance of coal. Sorry, here is the abundance of fossil. Of course, यहाँ पर जब ज्यादा मात्रा में कोल मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा मात्रा में आपको फॉसिल मिल रहा है। फॉसिल मिल रहा है ना। जब यहाँ पर, हाँ, जब यहाँ पर फॉसिल मिलेगा तभी यहाँ पर अंदर की जो कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, और जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तब यहाँ पर क्या होगा, कोल मिलेगा, ठीक है। इट इज द पीरियड व्हेन द Pangaea was broken into the Tethys Sea and came into the existence। ये मतलब सोचो ये भी प्लेन कितना। It is the time when the Pangaea was broken and the Tethys Sea came into the existence, ठीक है। जब वो Pangaea जब दो भाग में टूटा था और जब उसमें पानी भरा था तब उसी को ही बोलते हैं ना Tethys Sea। बोला इसने कुछ, ठीक है। द्रविडियन पीरियड वाज द बिगिनिंग ऑफ द कोल फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो है कोल फॉर्मेशन वो द्रविडियन टाइम पे नहीं हुआ, ठीक है। बाकी के जो मैंने बोला था उस टाइम पे जो अमेरिकन साइड के जो कोल है उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा रहता है, तो इसलिए उनका जो कोल कंटेंट है वो हमसे अच्छा रहता है, ठीक है। सो इट वाज द पीरियड ऑफ द कोल फॉर्मेशन, ठीक है। द्रविडियन सिस्टम वाज द पीरियड ऑफ द कोल फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपको कहां पर मिल सकता है, पीर पंजाल, कांगड़ा इन द शिमला रीजन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है, गढ़वाल एंड कुमाऊं इन द उत्तराखंड, ठीक है। गढ़वाल एंड कुमाऊं गैंगेटिक प्लेन्स के थोड़े से ऊपर है, ठीक है। तो मतलब गढ़वाल एंड कुमाऊं ऑफ द उत्तराखंड, पीर पंजाल, कांगड़ा, शिमला रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और कार्बेनिफ्यूरस रॉक मतलब here it is the comprise mainly of the limestone, shell and quartzite, ठीक है। QUARZIT, quartzite, ठीक है। Mount Everest are composed of the कार्बेनिफ्यूरस लाइमस्टोन, ठीक है। इसके लिए मैंने बोला था ना कि जब वहां से पानी आता है, जब वहां से वो सेडिमेंट्री आते हैं तो उसमें लाइम की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है, उसमें मिनरल ज्यादा मिलता है, ठीक है। सो माउंट एवरेस्ट कंपोज्ड ऑफ द कार्बेनिफ्यूरस लाइमस्टोन, ठीक है। कोल फॉर्मेशन स्टार्टेड इन द कार्बेनिफ्यूरस एज। अभी खत्म कहाँ पर होगा? आता है ना? हाँ हाँ, अभी मैंने तो नहीं खाया। नीचे होता है लेकिन ज्यादा अगर मुंह पे क्या है, ठीक है। हाँ, आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। आर्यन रॉक सिस्टम मतलब आर्यन ARYN, आर्यन रॉक सिस्टम। इसका जो भी ज्यादा रॉक सिस्टम है ये बेसिकली इंडिया के नाम के ऊपर ये रखा गया, ठीक है। तो इसके ऊपर सबसे आएगा पहले गोंडवाना सिस्टम, ठीक है। गोंडवाना सिस्टम, it name come from the tribe of people from the Telangana and the Andhra Pradesh, रहते हैं गोंड ट्राइब्स, ठीक है। they come from the तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तो उनके नाम पे ये गोंडवाना सिस्टम रखा गया, ठीक है। it belong to the tribe name गोंड, ठीक है। वो तो बहुत फैला हुआ था। डिपॉजिट अगेन, यार जो यहाँ का जो डिपॉजिट है
आपको कहां पर मिलेगा, सिंक्लाइन में मिलेगा, ठीक है। अगेन this deposit you can found in the syncline through the ancient period, ठीक है। आपको ये जो डिपॉजिट है सिंक्लाइन में, ये आपको एंशिएंट पीरियड से ये मिलना चालू होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज द सेडिमेंट्री इन नेचर, fresh water and the sedimentary accumulated through the terrestrial plant and the animal, मतलब इसमें abundant number of फॉसिल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर स्टेट की बात करूं तो एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, ये सब स्टेट्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और ज्यूरेसिक सिस्टम में इट इज नथिंग बट द सेडिमेंट्री रॉक। ये कहां पर मिलते हैं, राजस्थान एंड कच्छ साइड। कच्छ कहां पर है, गुजरात साइड में, ठीक है। सेडिमेंट्री एंड सैंडस्टोन। फिर बाद में ऑफ कोर्स डेक्कन ट्रैप मतलब इट फाउंड ड्यू टू द आउटबर्स्ट ऑफ वोल्केनो ओवर द vast area of the peninsular India and form the giving rise to the volcano trap, ठीक है। volcano deposit had the flat top and the steep side, of course top पे एकदम प्लेन है और साइड में एकदम स्टीप है, ठीक है। therefore it is called as the trap। अगर ऐसा नहीं होता then it was to called as the plateau, ठीक है। ये ऐसा ऊपर से पूरा फ्लैट है और साइड से पूरा स्टीप है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन एंड denudation since the million of year have reduced the size of the Deccan trap almost of its original size, ठीक है। due to the weathering and denudation process जो डेक्कन का जो ओरिजिनल का साइज था वो आज साइज लगभग वो आधा हो चुका है, ठीक है। लगभग कितना मैं बोल सकता हूँ, अभी भी वो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में वो मतलब उसका फैला हुआ है। और पहले कितना होता होगा, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ओके, ठीक है। The weathering of their rock for the long time had given to the birth of the black bottom soil, which you can say it is the rigor, ठीक है। मैंने सिखा था ना ब्लैक सॉइल, which you can say as the rigor। तो उसका जो वेदरिंग हुआ रहेगा ये डेक्कन ट्रैप का, तो ये जो ब्लैक सॉइल बना है, तो लगभग ये जो ब्लैक सॉइल आपको दिखाई दे रही है डेक्कन ट्रैप के वेदरिंग और डेन्यूडेशन से ये बना है, ठीक है। फिर बाद में लास्ट में एक ही है टर्शियरी सिस्टम, TERTIARY, ठीक है। TERTIARY tertiary system period of upliftment of the thesis geosyncline in the Himalaya। जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तब जाके टर्शियरी सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। जब हम लोग हिमालय को बोल सकते हैं यंग माउंटेन, then we can say tertiary system is also the young। of course जब इसका फॉर्मेशन तब हुआ है जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, then when we are saying that Himalaya is the younger fold mountain, then we can say this tertiary is also the younger rock system। सर हिमालय बना था जब टक्कर हुए थे प्लेट्स के। हाँ, प्लेट्स के जब टक्कर हुए थे तभी तो वहां पर जाकर फोल्डिंग टाइप के हुए थे, ठीक है। तो इसके लिए तो आज है ना फोल्डेड माउंटेन। इसको यार किसने बोला कि वो हमारे साथ लेके चेंज करता है, इसके लिए अंदर से वो अभी भी वो डिस्टर्ब है, अभी भी वो वहां पर डिस्टर्बिंग चालू है। हाँ, इसके वो अभी भी वो बढ़ रहा है, नहीं वो अपना प्लेट जो है वो और आगे से, हाँ वो आगे वो जा रहा है, ठीक है। एंड इट इज फुल्ली स्प्रेड ओवर द बंगाल एंड गंगा डेल्टा। It is fully spread over the Bengal and the Ganga Delta and east coast of the Andaman
आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ऑल्सो द रॉक सिस्टम, हाँ जो मैंने सिखाया था करेवास ऑफ कश्मीर जिसपे वो केसर उगते हैं, ठीक है, तो वो जो सिस्टम बने हैं और यू कैन से बांगर, खादर, ठीक है, वो सब इसी सिस्टम के वो देन, ठीक है, जो मैंने बोला था वो करेवास जो यहाँ पर वो उगते हैं, क्या उगते हैं वहां पर, केसर, तो वो इसका ही देन है, ठीक है। और जो ये है जो हमको इंडिया का जो कोल है, कोल सिस्टम को बोलते हैं गोंडवाना कोल, ठीक है, गोंडवाना कोल में हमें बहुत लेस कंटेंट ऑफ कार्बन मिलता है, इसके लिए इट इज द लेस, मतलब इट इज द पुअर कोल, और यहाँ पर हमें मिलता है रिच डिपॉजिट ऑफ द आयरन और कॉपर, यूरेनियम एंड एक्सेट्रा, ठीक है, फोटो में क्लिक करके पीडीएफ बेस में मैडम को भेज दो, ठीक है। सो हियर आवर रॉक सिस्टम इज